Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Starting with the name of Allah who is almighty and merciful. Am I audible to you guys? Yes, ma'am. Okay. We all have gathered here for what you called a very fun-filled evening. I, Nimra Ahmed, the ambassador of AMF, on behalf of all the team of AMF, welcome you to the special evening of splendor. When AMF is celebrating its inauguration ceremony. AMF is an organization which trains young psychologists so they can spread their knowledge to upcoming generation, which can play a significant role in the community. AMF aims to provide training and polish the skills of upcoming psychologists of our society. AMF have built an amazing team in a short time. Each of them have unique characteristics that make AMF more strong because teamwork is the ability to work together towards a common goal. Today, the main topic of our webinar is a relation between health and mental health and physical health, which can be explained as a healthy body gives a healthy mind. If the body is unfit, it gives rise to many mental diseases. This topic will be further explained by a respected speaker, Ms. Misbah Ijaz, who herself is skillful and perfect psychologist, founder of this mind-blowing and lifesaver organization, and a phenomenal motivational speaker who has conducted many webinars before. Now I hand over the rest of the webinar to Ms. Misbah Ijaz. Thank you so much, Nimra, for such a nice introduction. आवाज आ रही है सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, जी. Assalamu alaikum, dear. Yes. Assalamu alaikum, dear participants. I hope welcome you all on the platform of AMF Al Misbah Foundation. So today we are going to inaugurate the first chapter that is based on webinar series. Before moving toward the topic of webinar, I would want to explain about AMF little bit. Like what is it and what's the main purpose of this foundation, because we got a lot of questions about that, so I want to clear them today. Basically, Al Misbah Foundation is running by psychologists and it's all about psychology, because during my career I have noticed two main things. फर्स्ट ये कि जब हमारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे साइकोलॉजी को थ्योरेटिकल ज़्यादा और प्रैक्टिकल कम सिखाया जाता है. बेसिकली थ्योरी पे ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, और हालांकि अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस. साइकोलॉजी इज़ द प्रैक्टिकल फील्ड, जिसकी वजह से ये होता है कि स्टूडेंट्स जब प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं तो हाईएस्ट जीपीएस होने के बावजूद भी वो दे डोंट इवन नो दैट हाउ टू असेस द पेशेंट, हाउ टू इवन अप्लाई अ टेस्ट और हाउ टू इंटरप्रेट देम. और द सेकंड थिंग दैट आई नोटिस कि आफ्टर ग्रेजुएशन व्हेन यू अप्लाई समवेयर दे डिमांड एक्सपीरियंस. लाइक दे थॉट कि आप ग्रेजुएट होके निकले हो तो यू शुड मस्ट हैव एक्सपीरियंस. So that's why we thought to provide a platform for students and professionals too, जहाँ students के लिए short courses और trainings provide की जाएंगी, जिसमें उनको वो तमाम ethics और वो तमाम tips सिखाई जाएंगी जो एक psychologist में होनी चाहिए. Then they can further move on in their field. सेकेंड अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारी प्रोफेशनल्स के लिए है. प्रोफेशनल्स हमें एज अ ट्रेनर और जो है स्पीकर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, और एएमएफ में अगर आप एज अ ट्रेनर और स्पीकर ज्वाइन कर रहे हो तो यू विल बी सिलेक्टेड ऑन योर टैलेंट, ऑन योर एबिलिटी एंड योर नॉलेज, नॉट ऑन योर एक्सपीरियंस. ठीक है, और हम ये प्रेफर करते हैं कि ज़्यादातर हमारे पास जो स्टूडेंट्स एज अ स्पीकर और एज अ ट्रेनर हमारे पास आ रहे हैं वो जो है ग्रेजुएट हुए हैं. अब बात आती है कि हाउ इज़ इट बेनिफिट फॉर दोज हु आर नॉट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, जिनका साइकोलॉजी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो किस तरीके से जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या वो किस तरीके से उनके लिए बेनिफिट है. तो उनके लिए ये है कि पर्सनालिटी ग्रूमिंग ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी, मोटिवेशनल टॉक्स होंगी, बिकॉज एवरीवन नीड्स मोटिवेशन इन देयर लाइफ. और वेबिनार सीरीज़ में ऐसे टॉपिक्स पे वेबिनार्स करवाए जाएंगे जो कि कॉमन इशू से रिलेटेड होते हैं.
जो लाइक हमारी सोसाइटी या कुछ ऐसे इश्यूज जिन पे डिस्कशन की ज़रूरत होती है और जो सब लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं, सब लोग सुन सकते हैं और वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और हेल्प लेना चाहता है, ऑनलाइन हेल्प लेना चाहता है, तो ऑनलाइन सेशन, चाहे वो कैरियर काउंसलिंग हो या फिर कोई ऐसी लाइक कुछ सेशंस हो, जिन अगर सेशन की ज़रूरत हो तो वो हमसे हेल्प ले सकता है ऑनलाइन। अच्छा, अब बात आती है कि ये प्रोग्राम्स जो हैं पेड हैं या अनपेड हैं। तो इसमें कुछ प्रोग्राम्स हमारे पास पेड हैं और कुछ अनपेड हैं, लाइक ट्रेनिंग्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स, ऑनलाइन सेशंस, ये हमारे पास पेड हैं। और जो मोटिवेशनल people understood that what exactly AMF is, but if you want further more information तो आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन वहाँ पे दी जा चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह, by the grace of Allah, we have built an amazing team in a very short time, and I pray to Allah that may we keep growing like that, and may we get success in our purpose. अच्छा जी, अब बात आती है वेबिनार सीरीज की। तो वेबिनार सीरीज, एज द टैगलाइन शोज, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट वेबिनार सीरीज। तो एज अ टैगलाइन शोज, नॉर्मलाइजिंग द टैबूज ऑफ मेंटल हेल्थ। इसके अंडर डिफरेंट वेबिनार्स होंगे बाय डिफरेंट स्पीकर्स ऑन डिफरेंट डेट्स, जिसमें वो टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे जिनको प्रोहिबिटेड बिहेवियर समझा जाता है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, और जिनको बहुत ओपनली और इजीली डिस्कस नहीं किया जाता। So today's topic is relation between mental health and physical health. फर्दर वेबिनार्स में हम उन टॉपिक्स पे बात करने जा रहे हैं जिनका मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ के साथ भी लिंक है। ठीक है, तो वो सब डिस्कस करने से पहले वी शुड नो अबाउट दैट व्हाट इज द लिंक बिटवीन, व्हाट इज द एग्जैक्टली रिलेशन बिटवीन दीज टू हेल्थ्स। इफ अ पर्सन हैव टू हेल्थ्स, देन डेफिनेटली दे शुड बी रिलेटेड टू ईच अदर। सो आज जो है हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। वी ऑल नो दैट कि हमारी सोसाइटी में जितनी इम्पोर्टेंस हम अपनी फिजिकल हेल्थ को देते हैं उतनी मेंटल हेल्थ को नहीं देते, अवेयरनेस होने के बावजूद भी। बिकॉज व्हेन वी फेस सम फिजिकल इलनेस, हम फ़ौरन किसी स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं रिगार्डिंग द डिजीज़। ठीक है, और अगर हमें कोई मेंटल इशू फेस कर रहे हैं, हम किसी मेंटल इशू से गुजर रहे हैं, तो अव्वल तो हम रिकग्नाइज ही उसको नहीं करते। और अगर कर लें तो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कि अगर हमारे सर में दर्द है तो एक नेशनल टैबलेट हमने रखी हुई है, पैनाडोल, बस वो लेते हैं, देन हमारे जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और चाहे वो हमारा जो सर दर्द है, चाहे माइग्रेन की शक्ल इख्तियार कर जाए, वी डोंट रिकग्नाइज दैट। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि ऐसा बिहेवियर क्यों है। वो इसलिए दैट वी स्ट्रांगली बिलीव कि किसी भी बीमारी का इलाज सिर्फ मेडिसिन से मुमकिन है। हालांकि अगर देखा जाए होती हैं, जब तक आप उनका इनटेक कंटिन्यू रखते हैं, यू फील बेटर। ठीक है, और जैसे ही छोड़ते हैं तो सेम वही सिचुएशन हो जाती है। बिकॉज हमें हमारी बॉडी को उन मेडिसिन की आदत हो जाती है। क्योंकि अगर आप नोट करें तो उन फार्मूलाज जो आप मेडिसिन किसी भी इशू के लिए, किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर्स के लिए लेते हो, तो उन मेडिसिन के ऊपर अगर आप उनके फार्मूलाज पे नोट करें तो वहाँ भी लिटिल अमाउंट में वहाँ ड्रग्स मौजूद होती हैं। तो फार्मूले, वो मेडिसिन जो है हमारी बॉडी को उस फार्मूले का एडिक्ट कर देती है, क्योंकि फिर जब हम छोड़ते हैं तो हमारी फिर से दोबारा से वैसी सिचुएशन हो जाती है। और अगर मेंटल हेल्थ सिचुएशंस को देखा जाए तो बहुत सारी मेंटल हेल्थ सिचुएशंस जो चेंज करने से मिलता है, आपको डिफरेंट साइकोथेरेपीज लेने से मिलता है, या फिर आपको ऑर्गेनिक मेडिसिन लेने से मिलता है। ओके, काइंडली माइक ऑफ करें सब अपने। ओके, और जो सेकंड थिंग जो हमारे माइंड में आती है कि ये सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, मेंटल हेल्थ इशू को डिस्कस करते हुए अगर हम किसी से डिस्कस करें तो हमारे माइक ये क्या मेंटल हेल्थ क्या है?
सेकंड थिंग जो हमारे माइंड में आती है वो ये होती है कि लोग क्या कहेंगे। इसी एक जुमले ने हमारी बहुत सारों की जिंदगियों को बर्बाद करके रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी मेंटल हेल्थ है क्या, ठीक है। मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू योर टू आवर इमोशंस, साइकोलॉजिकल सिचुएशंस एंड सोशल वेल बींग्स, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि हम कैसे सोचते हैं, क्या फील करते हैं और किस तरीके से एक्ट करते हैं, और अगर कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तो कैसे हैंडल करते हैं और डिसीजन किस तरीके से लेते हैं। जबकि जो नेक्स्ट स्लाइड करिएगा समिया। ओके जबकि जो हमारी फिजिकल हेल्थ है वो इज ऑल रिलेटेड, नहीं एक स्लाइड पीछे, ओके, इज ऑल रिलेटेड टू योर बॉडी, इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। आपकी बॉडी ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही, आपकी बॉडी ऑर्गन्स ठीक से प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, तो इसमें वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही आपस में बहुत डीपली लिंक्ड हैं, ठीक है। और उनका ये लिंक जो है बाय डायरेक्शनल और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आपकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होगी, लेकिन अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है तो सेम लाइक दैट आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी। अच्छा, यहाँ पे अगर इस चीज़ को समझना है तो हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे हमारे I have a question. आपके जो भी क्वेश्चन है काइंडली आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, लास्ट में सब क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा। But ये इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी पैरा ओके उसके बाद ये है कि अगर हम जहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ले लें इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरीके से जो है आपका ये कनेक्शन जो है वो बाय डायरेक्शनल है और किस तरीके से कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास आती है। लाइक जैसे हमारे घर में एक इलेक्ट्रिसिटी यूनिट होता है जिसमें अगर कोई थोड़ी सी खराबी हो जाए तो पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी में इशू हो जाता है, ठीक है। सेम लाइक दैट आपका माइंड, आपका दिमाग भी एक यूनिट की तरह है जिसने होल बॉडी फंक्शनिंग को हैंडल करना होता है, जिसने होल बॉडी फंक्शन जिसने होल बॉडी फंक्शनिंग को हैंडल करना होता है, राइट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बिकॉज हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स और केमिकल्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स और केमिकल्स जो हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट जो है उनकी डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए, डिफरेंट प्रॉपर फंक्शन बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लें कि अगर आपको अपनी एक जो है फिंगर मूव करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फिंगर की एग्जांपल लेते हैं, आपको एक फिंगर मूव करनी है और उसके लिए भी आपके माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो आपके नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स को मैसेज देते हैं और फिंगर तक मैसेज आता है, देन आपकी फिंगर मूव हो पाती है। दैट्स जो है डिस्कस करने में ये बहुत ही लाइक एक वो लग रहा है, वो काम लग रहा है कि ये कितने टाइम में होता होगा, तो ये काम जो है विद इन द नैनो सेकेंड्स में ये काम होता है और बहुत ही कम टाइम में, नैनो सेकेंड जो है एक बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। और अगर ये सब चीज़ें देखी जाएं तो अगर दिमाग में कोई इशू हो तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी है उसमें भी इशू होगा, बिकॉज दे आर डीपली कनेक्टेड टू ईच अदर। इसलिए दोनों को जो है वो साथ साथ लेकर चलना चाहिए। और अभी जो है हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है या कोई इन्फर्मिटी नहीं है, बल्कि इट्स द कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एंड सोशल वेल बीइंग, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो हेल्थ विदाउट योर मेंटल हेल्थ। अगर आपको मेंटल हेल्थ इशू है तो आपकी जो है उस फिजिकल हेल्थ का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए दोनों को साथ साथ लेकर चलना चाहिए, ठीक है। अगर आप इम्बैलेंस करने लग जाओ तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। समिया नेक्स्ट स्लाइड कीजिएगा प्लीज। ओके नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट, ओके।
तो अगर आप निगलेक्ट करने लग जाओ तो बहुत सारी ऐसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं। लास्ट वन, बहुत सारी ऐसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हैं जो अकर हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर, आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपको रिस्पायरेटरी इश्यूज हो जाते हैं, ओबेसिटी के इश्यूज हो जाते हैं, गैस्ट्रोनोमिकल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर प्रीमेच्योर डेथ भी हो सकती है। तो अगर आप मेंटल हेल्थ को निगलेक्ट करें, नेक्स्ट निगलेक्ट करें, तो बहुत सारे जो हैं देयर आर सम कॉमन इश्यूज दैट कैन अराइज एंड दे लीड टू यू टू सीरियस इश्यूज। ठीक है, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी डिसऑर्डर, शिजोफ्रेनिया, ईटिंग डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिप्रेशन, एडिक्टिव बिहेवियर्स, ये तमाम वो डिसऑर्डर्स हैं जो कॉमनली एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ यू अगर आप अपनी हेल्थ को डिनाई करने लग जाएं या फिर इग्नोर करने लग जाएं, ठीक है, और दिमाग में जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी एबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से आपको क्रोनिक डिजीज़ या फिर क्रोनिक फिडीग लाइक इंसोम्निया कॉज हो सकता है, और जो कि बॉडी इश्यूज़ की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट समिया स्लाइड नेक्स्ट कर दें। ओके, एज आई टोल्ड अर्लियर के जो है आपकी जो अगर आप किसी सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं, सीरियस मेंटल कंडीशंस को फेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत हाईली रिस्क होता है कि आप क्रोनिक फिजिकल कंडीशंस को भी फेस करें। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह अगर आप क्रोनिक फिजिकल कंडीशंस को फेस कर रहे हैं तो वहाँ बहुत हाईली रिस्क है कि आप पुअर मेंटल हेल्थ को भी डेवलप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। सो जो इनके दरमियान कनेक्शन है, माइंड एंड बॉडी के दरमियान जो कनेक्शन है, इट्स रियली अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक। मैंने पहले बताया बाई डायरेक्शनल है, कॉम्प्लेक्स है, इतना इजीली उसको विद इन फ्यू टाइम, विद इन एन आवर इतना इजीली डिस्कस नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट्स रियली अ ब्रॉड टॉपिक। तो उसके लिए आई हैव कलेक्टेड सम एग्जाम्पल्स जो कि आज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी, और जिनसे आप लोग जान पाएंगे कि जिन इश्यूज़ और जिन कंडीशंस को हम बहुत लाइटली ले रहे होते हैं, एक्चुअली उनका क्या जो है हमारे ऊपर असर हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमारे पास डायबिटीज़, आर्थराइटिस, हार्ट डिजीज़, ओबेसिटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर एंड एस्थमा। ठीक है, ये तमाम जो कि बहुत सारे लोग फेस कर रहे होते हैं, उनकी वजह से क्या जो है इश्यूज हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या हो सकते हैं, या फिर इन मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से क्या क्रोनिक कंडीशंस के ऊपर क्या असर हो सकता है, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास आती है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो हमारे पास डायबिटीज़ का आता है। जो लोग टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर ईटिंग डिसऑर्डर्स होने के। ठीक है, यू ऑल नो दैट कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसमें आपकी जो इंसुलिन की जो आपके सेल्स हैं, बॉडी सेल्स हैं, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इंसुलिन बनना ख़त्म हो जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ में ये होता है कि आपकी जो बॉडी है वो जो आपकी इंसुलिन होती है उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रही होती। ठीक है, बिकॉज इंसुलिन रेजिस्ट हो जाती है वहाँ पे, इंसुलिन रेजिस्ट। ठीक है, और देन और हमेशा जो है ये फियर रहता है कि आप कब जो है आपका जो ब्लड शुगर है वो कब फ्लक्चुएट कर जाए, और ये बहुत एक स्ट्रेसफुल इवेंट होता है, क्योंकि अगर आपके ब्लड शुगर में चेंजेस हों तो रैपिडली आपके मूड्स चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उन मूड्स के चेंज होने के साथ साथ आपको एंजाइटी का इशू हो सकता है, ट्रबल थिंकिंग हो जाती है, फिर उसके बाद फिडीग के इश्यूज हो जाते हैं, और ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो शो होते हैं। फिर उसके बाद डायबिटीज़ की कंडीशन होते हुए आपको डायबिटीज़ डिस्ट्रेस हो सकता है। अब डिस्ट्रेस क्या है? डिप्रेशन एंड डिस्ट्रेस आर हाईली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, डिस्ट्रेस ये है कि आपको एक ऐसी अनप्लेजेंट जो है वो इमोशंस या फीलिंग्स या थॉट्स आती हैं, या फिर ऐसी कंडीशन और बिहेवियर हो जाता है जो कि आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है, आप किस तरीके से सोचते हो, कैसे एक्ट कर रहे हो, किसी सिचुएशन में किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहे हो, कैसा फील कर रहे हो, इस सब के ऊपर इफेक्ट करता है। इस सिचुएशन को डिस्ट्रेस की सिचुएशन कहते हैं। ठीक है,
उसमें फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको ये हमेशा ये फियर रहता है, लाइक आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो पे चला जाता है, और इस फियर की वजह से देन आपको एंजाइटी का इशू भी हो सकता है, आपको डिप्रेशन का इशू भी हो सकता है, और आपको स्ट्रेस का इशू भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अभी देखें यहाँ पे एज आई सेड के जो है बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है, ठीक है। इफ़ यू हैविंग डायबिटीज़ देन ऑब्वियसली यू विल फील डिप्रेशन, ठीक है, आपको डिप्रेशन फील हो सकता है, और अगर आपको डिप्रेशन का इशू है तो देयर आर मच मोर चांसेस टू हैव डायबिटीज़, बिकॉज डायबिटीज़ में क्या होता है, हमेशा ये जो है सिचुएशन रहती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है कि किस तरीके से मुझे अपना ब्लड शुगर जो है उसको कंट्रोल करना है, उस लेवल को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अपनी डाइटरी जो है डाइट में उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, और ये चीज़ आपको डिप्रेशन की तरफ लीड कर सकती है। सिमिलरली इफ़ यू हैविंग डिप्रेशन तो आपको डायबिटीज़ का इशू हो सकता है, बिकॉज उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका लेवल जो है वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ चला जाता है, ठीक है, और देन जो है आपके एपेटाइट में भी चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हर्ट एंड मेंटल हेल्थ, ठीक है। हर्ट किस तरीके से रिलेट करता है हमारी मेंटल हेल्थ के साथ। जो एंजाइना और हार्ट अटैक्स होते हैं उनको हम कार्डियोवैस्कुलर जो है वो डिजीज़ कहते हैं। जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड इशू हों उनमें जो है डिप्रेशन बहुत कॉमन होता है। स्ट्रेस की वजह से दो हार्मोन्स होते हैं जो जिनकी प्रोडक्शन में चेंजेस अकर हो जाती हैं, लाइक एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल, ठीक है, जो इनकी प्रोडक्शन में चेंजेस हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो हार्ट रेट है और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी असरअंदाज होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो इन दो जो हार्मोन्स हैं उनकी क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर के एड्रेनलिन जो है वो आपके हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर और आप में जो एनर्जी है उसको बूस्ट अप करता है, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है। और उसके दूसरी तरफ देखें तो कॉर्टिसोल जो है वो एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि आपकी ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। और अगर देखें हम तो अगर उनकी कंडीशन जो है अगर उनकी रिडक्शन हो जाए, इन दो हार्मोन्स की रिडक्शन हो जाए, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, फिर उसके बाद हमारा जो ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सीड कर जाए, लाइक इंक्रीज हो जाए, बहुत इनकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत हाईली होने लग जाए, तो ये तमाम चीज़ें जो अंडर कंट्रोल रहनी चाहिए वो इंक्रीज कर जाती हैं अपने एक स्पेसिफिक पॉइंट से, ठीक है। तो इन दो जो हार्मोन्स हैं, ये दो हार्मोन्स इनमें एबनॉर्मेलिटी आ सकती है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है, हैविंग स्ट्रेस। और एंजाइटी और डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं कि उनके नर्वस सिस्टम और हार्मोनल बैलेंस में भी चेंजेस अकर होते हैं, जिसकी वजह से अरिथमिया हो सकता है। उसमें अरिथमिया क्या होता है कि आपका जो इरेगुलर आपका रिथम हो जाता है, आपकी या तो बहुत जो आपका हार्ट रेट है, जो आपकी हार्ट बीट है, या तो बहुत फास्ट हो जाता है या फिर बहुत लो हो जाता है। और जो लोग नेक्स्ट कर दें प्लीज़, जो लोग हार्ट डिजीज़ को सफ़र कर रहे होते हैं वो डिप्रेशन से भी सफ़र करते हैं। और इससे नेक्स्ट अपनी लाइफ की तरफ, और वो लोग अपनी लाइफ की तरफ बहुत ही लेस मोटिवेटेड होते हैं, जो कि और डिप्रेशन आर्टियोस्क्लेरोसिस की जो टर्म है वो इसका ये मतलब है कि आपकी जो आर्टरीज़ है वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्टरीज़ में ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाता है। और आर्टियोस्क्लेरोसिस को डिप्रेशन जो है वो एक्सेलरेट करता है, और जो कि हमारा जो आगे जाकर हार्ट अटैक का बायस बनता है, ठीक है। और अगर डिप्रेशन को टाइमली ट्रीट कर लिया जाए तो हार्ट प्रॉब्लम्स को भी टैकल किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इशू आता है, जो डिजीज़ आती है वो एथराइटिस की आती है, ठीक है। एथराइटिस एंड मेंटल हेल्थ, ये दोनों किस तरीके से इंटर रिलेटेड हैं। एथराइटिस जो कि जॉइंट से रिलेटेड होता है, जिसमें जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस हो जाती है, या फिर डिफॉर्मिटी ऑफ जॉइंट्स हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि एथराइटिस की वजह से लोगों में ये फीलिंग्स आना शुरू हो जाती हैं कि मैं किसी काम का नहीं रहा, मैं अब ठीक नहीं हो सकता, और उसकी वजह से फिर डिप्रेशन और डिस्ट्रेस कॉज होना शुरू हो जाता है, मूड इश्यूज़ भी हो जाते हैं, बिकॉज इसमें पेशेंट जो है बहुत हेल्पलेस फील करता है,
ठीक है, वो जो है फोकस सही से नहीं कर पाता, रेस्टलेसनेस फील होती है, इरेटेबिलिटी आ जाती है, स्लीप में जो है स्लीप इश्यूज हो जाते हैं। तो जो ये क्योंकि जो है ना इस डिजीज़ में इंसान मुकम्मल तौर पे दूसरों पे डिपेंड करता है, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड करने लग जाता है। और इस डिजीज़ की वजह से बहुत से लोगों की लाइक वो दे कांट गो ऑन देयर जॉब, वो अपनी जॉब को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते, कोई भी काम अपने ओन पे नहीं किया जा सकता, मूड बहुत बुरे तरीके से इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो एथराइटिस की जो है एक और टाइप होती है जो कि रिमेटॉइड एथराइटिस जिसको कहा जाता है, उसमें भी जॉइंट्स की स्टिफनेस हो जाती है, फटीग आती है। तो लेकिन ये जो है रिमेटॉइड एथराइटिस जो है वो सीवियरली डिप्रेशन कॉज करता है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ब्रेन में जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक करने का बायस बनता है, जो कि आपकी थिंकिंग, आपकी मेमोरी, आपकी रीजनिंग को भी इफेक्ट करता है और डिफ़िकल्टी कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद ओबेसिटी है हमारे पास, ओबेसिटी एंड मेंटल हेल्थ। ओके नेक्स्ट। ओके जी, ओबेसिटी एंड मेंटल हेल्थ में क्या है कि ये भी आपस में दोनों बाई डायरेक्शनल हैं, बाई डायरेक्शनल रिलेट करते हैं आपस में, जिसमें ये होता है कि अगर आपको ओबेसिटी है तो यू मे फेस मेंटल इश्यूज, सिमिलरली इफ़ यू हैव मेंटल इश्यूज देन यू मे आल्सो हैव ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा जो इमोशनल हेल्थ है वो डिस्टर्ब होती है। मोस्ट कॉमनली ओबेसिटी में डिप्रेशन हो जाता है, और इफ़ यू आर इन डिप्रेशन तो देयर इज़ मोर चांसेस टू हैव ओबेसिटी। इसमें बहुत सारी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, और जो है इन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो लोग ओबेसिटी का शिकार होते हैं उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, नाइट ईटिंग सिंड्रोम, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है। और देखा जाए अगर ईटिंग डिसऑर्डर, अभी मैंने बात की बिंज ईटिंग डिसऑर्डर की, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ईटिंग डिसऑर्डर की मेनली 3 टाइप्स होती हैं, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और थर्ड वन हमारे पास आती है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, ठीक है। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि आपका जो बॉडी वेट है वो एबनॉर्मली जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये फियर होता है कि कहीं मैं बहुत ज़्यादा जो वेट है वो गेन ना कर लूँ। और देन उसके बाद बुलिमिया नर्वोसा में ये होता है कि इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो खुद को बहुत ज़्यादा खाने से रोक नहीं पाता। और बींज ईटिंग डिसऑर्डर जो कि ओबेसिटी के पेशेंट्स में अकर करता है, उसमें ये होता है कि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट कर दें। ओके लास्ट पीछे। अच्छा, जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें जो है बिंज ईटिंग डिसऑर्डर वो ज़्यादा पाया जाता है बनिस्बत एनोरेक्सिया और बुलिमिया के, क्योंकि जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है उसमें इंसान बहुत एबनॉर्मल ईटिंग बिहेवियर उसका हो जाता है, लाइक खाने के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड इनटेक हो जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक टाइम, बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है। अनएबल टू स्टॉप, बहुत कम जो है आप खुद को रोक नहीं पाते हो, आपका कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाता है खुद के ऊपर, आपकी जो खाने की अर्जेस हैं, ठीक है, वो उनको आप रेजिस्ट नहीं कर पाते हो। और या फिर ये होता है कि अगर आप ये देखो कि लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं या फिर लोग आपको उस चीज़ से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सीक्रेटली वो खाना शुरू हो जाते हो, ठीक है। या फिर आप में ये फीलिंग होती है कि आप अपना खाना किसी के साथ शेयर ना करो, और इसमें आपको डिप्रेशन की फीलिंग्स भी हो सकती हैं, और आपको डिस्गस्ट भी फील होता है, लाइक अशेम फील होता है, गिल्टी फील करते हो आप अपनी इस सिचुएशन की वजह से, जो कि हाईली जो है आपको डिप्रेशन और जो है डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसे डिसऑर्डर्स जो हैं वो कॉज करता है। ओबीस पेशेंट को स्लीप डिसऑर्डर बहुत होता है, ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाता है, मूड डिसऑर्डर्स हो सकता है। और अगर देखा जाए स्टडीज़ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहे होते हैं उनमें हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और ओबेसिटी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बनिस्बत उनके जिनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते, ठीक है। ओके, उसके बाद देखते हैं जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और मेंटल हेल्थ।
नेक्स्ट, ओके। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्रेन और जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है एक दूसरे से बहुत ही इंटीमेटली कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेन का जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो आपकी स्टमक और इंटेस्टाइन के ऊपर होता है, और जब ब्रेन में इशू हो तो आपका जो गट है वो सिग्नल्स आपके गट की तरफ सिग्नल्स जाते हैं, और अगर आपके गट में कोई प्रॉब्लम है तो सिमिलरली इसी तरीके से आपका जो है ब्रेन की तरफ सिग्नल्स जाते हैं। इसीलिए अगर आपके इंटेस्टाइन और स्टमक जो है ट्रबल कर रहे हैं तो आपको एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन कॉज हो सकता है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल इसकी ये हो सकती है कि व्हेन यू हैव टू डील विद स्पेसिफिक सिचुएशन, जब आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन या कंडीशन को हैंडल करना हो, या फिर आपको किसी एक बिग इवेंट को अटेंड करना हो, या फिर आपका रिजल्ट आने वाला हो, तो यू फील बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, राइट। तो वो जो चीज़ होती है वो आपकी एक्चुअली एंजाइटी की वजह से होती है, और कुछ लोगों का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम इतना सेंसिटिव होता है कि वो ऐसे इवेंट्स, ऐसे सिचुएशंस पे अपसेट हो जाता है एंजाइटी की वजह से। हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और ब्रेन के दरमियान एक जो है कम्युनिकेशन सिस्टम पाया जाता है जिसे गट ब्रेन एक्सिस कहा जाता है, ठीक है, जो कि गट और ब्रेन को आपस में एक तरीके से कनेक्ट करता है, क्योंकि हमारे एज यू ऑल नो दैट कि हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, फिर जो है जिस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं मैसेजेस कन्वे करने में, मैसेजेस बॉडी टू माइंड, माइंड टू बॉडी, मैसेजेस लाने और लेके जाने में। तो इसी तरीके से हमारे गट में भी 500 मिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। और एक नर्व होती है जिसको वेगस नर्व कहा जाता है, वो सबसे बड़ी नर्व होती है जो कि गट में प्रेजेंट होती है, और गट और उसका ये फंक्शन होता है कि वो गट और ब्रेन को आपस में कनेक्ट करती है। और अगर वेगस नर्व में इशू हो जाए तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आईबीएस जिसको हम कहते हैं, उसका इशू हो सकता है, जो कि वेगस नर्व के फंक्शन की रिडक्शन को इंडिकेट करती है, ठीक है। इवन जो है हमारे कुछ खाने का सोचने से लेकर, हम अभी खाने का सोच ही रहे होते हैं, उससे लेकर हमारे डाइजेस्ट होने तक हमारे गट में कुछ केमिकल्स, हमारे स्टमक में कुछ जूसेस, कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि उन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से पॉसिबल होते हैं, और जो ब्रेन और इंटेस्टाइनल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं। और ये सब प्रोसेस भी ये सब जो भी प्रोसेस है सेम लाइक दैट इन द नैनो सेकेंड्स होता है, बहुत कम वक्त में होता है, ठीक है। और अगर मेंटल हेल्थ जो है जो आपकी मेंटल हेल्थ है, इट कैन इफेक्ट द एक्टिविटी लाइक मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पिरेटरी एंड मेंटल हेल्थ। ये दोनों आपस में किस तरीके से कनेक्ट करती हैं, क्योंकि देखें जब आपको ब्रीथिंग इशू हो या फिर कोई भी रिस्पायरेटरी इशू फेस कर रहे हो तो बहुत एंगर, डिसहार्ट और होपलेसनेस वाली फीलिंग्स आती हैं, ठीक है, उन फीलिंग से गुजरना पड़ता है, बिकॉज ब्रीथिंग इशू के साथ इंसान वो नहीं कर पाता जो उसका दिल करता है, राइट। और यहाँ पे डिप्रेशन, होपलेसनेस को फेस करना पड़ता है। ब्रीथलेसनेस में एंजाइटी इश्यूज बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एंजाइटी डिसऑर्डर्स में भी इंसान को शॉर्टन ऑफ ब्रीथ को फेस करना पड़ता है, आपका सांस रुक रुक कर आता है, आप कॉन्सेंट्रेट सही से नहीं कर पाते हो, तो वो चीज़ आपको पैनिक कर देती है और फ्राइटन कर देती है, ठीक है, और आप फिर उन चीज़ों को, उन सिचुएशंस को अवॉइड करने की कोशिश करते हो। और जो आपका रिस्पायरेटरी या फिर कफिंग की वजह से इंसान को ज़्यादातर जो है या तो घर में रहना पड़ता है या फिर अपनी उन तमाम एक्टिविटीज़ को ख़त्म करना पड़ता है जिसकी वजह से उसको ब्रीथिंग इशू हो, और डस्ट से बहुत ज़्यादा बचना पड़ता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करना पड़ता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो ब्रीथलेसनेस है वो आपकी जो है स्लीप को भी इफ़ेक्ट करती है, आपके मूड्स को भी इफ़ेक्ट करती है, आप ठीक से सो नहीं पाते हो, इरिटेबल फील करते हो। तो कुछ लोग जो हैं जिसमें जो कि ये जो कॉजेज़ हैं लाइक इरिटेबल फील करना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, उसके बाद स्लीप इश्यूज़ हो जाना, तो ये तमाम जो सिम्टम्स हैं ये डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स कुछ लोग एक साथ फेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट।
अच्छा जी, फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास कि आप जो है किस तरीके से अपनी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकते हो। बिफोर मूविंग टूवर्ड द फैक्टर्स आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि डिप्रेशन वर्सेस एंजाइटी, ठीक है। अभी हम लोगों ने पीछे बहुत सारे जो भी डिसऑर्डर्स, जो भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की, वो ज़्यादातर रिलेटेड थी उस चीज़ के कि एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, तो डिप्रेशन हो सकता है। तो इन दोनों के दरमियान एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो इन दोनों को डिफ़र करती है। तो समटाइम्स हम एंजाइटी को और डिप्रेशन को दोनों को एक साथ लेकर चल रहे होते हैं, हालांकि देखा जाए तो ये टोटली जो है वो डिफरेंट एक कैटेगरी में लाए कर सकते हैं, एक साथ ये आ सकते हैं, एक साथ आप ये दोनों डिप्रेशन और एंजाइटी को फेस कर सकते हो, लेकिन दीज टू आर टोटली डिफरेंट, ठीक है। डिप्रेशन ये होता है कि जब आपकी जो है ना एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ सैडनेस होता है, उसमें आप लो मूड आपको होता है, ठीक है। आप होपलेसनेस की फीलिंग्स को फेस कर रहे होते हो, वर्थलेसनेस होती है कि आपको ये लगता है कि आप वर्थ नहीं हो, और उसके बाद आपका लॉस, आपको जो कुछ एक्टिविटीज़ लाइक कुछ एक्टिविटीज़ में आपका जो है इंटरेस्ट जो है वो लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद विदड्रॉल आप कर जाते हो सोशल इवेंट से, सोशल इंटरेक्शन से। और इसके साथ जो एंजाइटी है वो एक परसिस्टेंट जो है उसको कहा जाता है कि आपको परसिस्टेंट वरी या फिर फियर, किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन, एनी टाइप ऑफ फियर हो सकता है, ठीक है। आप कोई भी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन या सिचुएशन से जो है आपको परसिस्टेंटली आपको फियर होता है या फिर आप परेशान रहते हो। जो एंजाइटी है वो डिपेंड करता है एक इंसान की ज़िंदगी में कैसी सिचुएशंस और कंडीशंस आ रही हैं, ठीक है। एंजाइटी उन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी सिचुएशंस और कंडीशन से गुजर जाते हैं जिनको, और वो एंजाइटी का इशू नहीं फेस करते, लेकिन सेम अगर वही सिचुएशन किसी ऐसे इंसान की लाइफ में आ जाए जिसका जिसकी मेंटल हेल्थ बहुत सेंसिटिव है और वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बहुत डीप में जाके लेता है, तो उसके साथ फिर ये एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं। एंजाइटी में मोस्टली जो है आपको अनकंफर्टेबल थॉट्स का सामना करना पड़ता है, लाइक रेसिंग ऑफ थॉट्स, आपको अपनी थॉट्स के ऊपर वो कंट्रोल नहीं होता, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, आपको डिफ़िकल्टी होती है कंसंट्रेट करने में, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का सामना करना पड़ता है, लाइक आपका सांस रुक रुक कर आता है, आपको ऐसा लगता है कि आप सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हो, पैनिक हो जाते हो आप, स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है। और इसी जो है, और फिर आपको सबसे एंजाइटी में सबसे ज़्यादा जो आपको फियर होता है वो आपको पैनिक का ही होता है, लाइक पैनिक अटैक्स इतने सिवियर होते हैं कि आपको ये फियर होता है कि आप रेजिस्ट करने की कोशिश करते हो कि ये फियर अब आपको ना हो तो अच्छा है, लाइक ये पैनिक अटैक्स आपकी लाइफ में ना हो तो अच्छा है। लाइक हम लोग इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर लेते हैं, लाइक जिन लोगों को ये इश्यूज नहीं होते वो बहुत इजीली बता रहे होते हैं कि ये सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन के ये होते हैं, एंजाइटी के ये होते हैं, स्ट्रेस के ये होते हैं। तो लेकिन जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी को फेस कर रहे होते हैं, जो लोग उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं, उनके लिए ये चीज़ जो है ये सिचुएशंस, ये कंडीशंस बहुत अनबियरेबल होती हैं, बहुत वो उसमें ख़ुद को बहुत जो है वो बहुत इस तरह कमज़ोर महसूस करते हैं, लाइक उन सिचुएशन से वो इजीली कोप अप नहीं कर पाते अनटिल वो किसी से कोई मदद ले लें या फिर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करें। अच्छा, अब आते हैं फैक्टर्स की तरफ। कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन कर पाते हो। फर्स्ट फैक्टर जो है हमारे पास एक्सरसाइज का आता है। अगर आप अपने लाइफ में एक्सरसाइज को शामिल कर लो, अगर आप ज़रूरी नहीं कि वो एक्सरसाइज कोई बहुत ही हैवी वर्कआउट हो, बहुत ज़्यादा कोई आप मतलब एक्सरसाइज लाइक घंटे की, 2 घंटे की, आधे घंटे की, इतनी की, तो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप लाइफ में आप अपनी लाइफ में अपने 15 मिनट्स, अपने 10 मिनट्स, इवन जो है 5 to 10 मिनट्स आर इनफ अगर आप एक्सरसाइज को दे रहे हो और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो कोई हैवी एक्सरसाइजेस करो, ठीक है। सिंपली वॉक भी आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप जंपिंग कर लेते हो, ये भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। उसके बाद हमारे पास आता है डाइट। आपको जो है आपको अपनी डाइट अच्छी करनी है, ठीक है। डाइट में आपने उन चीज़ों को शामिल करना है लाइक जो कि मल्टी वाइटामिन्स हों, वाइटामिन्स में वो चीज़ें लेनी है जो कि वाइटामिन्स पे बेस करती हों, या फिर उसके बाद प्रोटीन्स हों, तो ऐसी डाइट को शामिल करना है जो कि
आपको फ्रेश रखती हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग टेस्ट आ जाते हैं उसके बाद। अगर आपको अपनी बॉडी में कोई एबनॉर्मेलिटी, स्लीप वेल, आपने अच्छी नींद लेने की कोशिश करनी है। गेटिंग प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू नीड इट। जब अगर आपको ज़रूरत हो या जब आपको ये फील हो कि आपको अब जो है हेल्प लेनी चाहिए, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो कोशिश कीजिए कि किसी प्रोफेशनल से हेल्प लीजिए। घर में खुद डॉक्टर बनकर ना बैठ जाइए। ये चीज़ बहुत ही जो है वो लाइफ के ऊपर इफेक्ट करती है। हम गूगल से चीज़ें सर्च करके खुद को डायग्नोज करके बैठे हुए होते हैं कि हाँ जी मुझे तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इट्स बेटर कि आप किसी प्रोफेशनल से हेल्प लो, उनसे हेल्प लो जिनको उन इश्यूज के बारे में पता हो, जो स्पेशलिस्ट हो, ठीक है। टॉक थेरेपी जो है एक बहुत ही जो है अच्छी थेरेपी होती है। जब आप बोलते हो, जब आप बोलना स्टार्ट करते हो, तो आपकी वो जो आपके अंदर का जो एक चीज़ होती है वो बाहर निकल आती है, ठीक है। आपके अंदर की वो जो आपने कुछ चीज़ें छुपा कर रखी हुई होती हैं, उनके ऊपर आप काबू पाना शुरू हो जाते हो और आपको अच्छा महसूस होता है बात करके, ठीक है। मैनेज योर स्ट्रेस लेवल। अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना सीखें, बिकॉज़ आजकल की अगर सिचुएशंस देखी जाए तो हर एक की ज़िंदगी में, हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो स्ट्रेस कॉज करती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक की लाइफ जो है वो परफेक्ट हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो हर एक जो है अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव इवेंट्स कुछ इस तरीके से फेस कर रहा होता है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लेवल है उसको किस तरीके से मेंटेन करते हो, राइट। उसके बाद कनेक्टिंग विद अदर्स। कभी भी आपने मुकम्मल खुद को कट ऑफ नहीं कर लेना, ठीक है। आजकल के दौर में अगर देखा जाए, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो हम ऑल टाइम अपनी वो करते रहते हैं, मोबाइल्स पे लगे हुए होते हैं। फ्रेंड्स चैटिंग अगर हो रही है तो व्हाट्सएप, इन चीज़ों पे हैं ज़्यादातर। तो इन चीज़ों को फोकस देने की बजाय आप लोगों के साथ उठे बैठे, उनके साथ बात करें, उनके साथ बाहर आए जाए, तो वो चीज़ भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है। स्टेइंग पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। हम समटाइम जो है ना, कुछ नेगेटिव इवेंट्स जो हम फेस कर रहे होते हैं, हम उसको बहुत एग्जैजरेट करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई मुझे तो ये भी हो रहा है, मैं ये भी फेस कर रहा हूँ, मेरी जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं है। तो उन तमाम चीज़ों में से जहाँ पे आपको पता होगा कि जहाँ पे नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है वहीं पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो आपका जो ब्रेन है इज जस्ट लाइक अ मैग्नेट। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके से अपनी उस सिचुएशन को, किस तरीके से उस सिचुएशन में से पॉजिटिविटी को निकालते हो, ठीक है। गेटिंग फिजिकली एक्टिव, खुद को एक्टिव रखें फिजिकली। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करें, बिकॉज दूसरों की हेल्प करके भी इंसान जो है वो एक अजीब सी खुशी मिलती है जब आप किसी को हेल्प करते हो, बिकॉज यू फील प्राउड कि हाँ मेरी वजह से कोई आज किसी जगह पे है, या मेरी वजह से कोई आज इतना अच्छा है, ठीक है। अगर आपके साथ अगर आपको किसी ने हेल्प नहीं किया, आपको ये फील होता है कि आप ऐसी स्टेज पे हो जहाँ पे कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो आप वो पर्सन बन जाओ, आप किसी की हेल्प कर दो, ठीक है। तो ये होती है पॉजिटिविटी, कि आप किस तरीके से पॉजिटिविटी को किस तरीके से पॉजिटिविटी अचीव करते हो। डेवलपिंग कोपिंग स्किल्स, किसी भी इशू के साथ, किसी भी सिचुएशन और कंडीशन को फेस करने के लिए कोपिंग स्किल्स को अपने अंदर कोपिंग स्किल्स को कीजिए, कोपिंग स्किल्स खुद के अंदर लाइए। क्योंकि ये बात जो है, ये अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में ये एक हकीकत है, रियलिटी है। आज के दौर में ये चीज़ रियलिटी है कि आपकी लाइफ में कोई भी कभी भी खुद से चल कर नहीं आएगा और आपसे नहीं पूछेगा कि हाँ भी व्हाट्स द इशू, क्या प्रॉब्लम है, क्या मैटर है, आई कैन हेल्प यू। आपको अपने लिए खुद जो है वो स्टैंड लेना पड़ता है, राइट। खुद आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, तो जब तक आप खुद स्टैंड नहीं लेते हो, तब तक कोई भी आपकी आपकी तरफ आपके लिए बेहतर नहीं सोच सकता। सो सबसे पहले ओके, आई थिंक देयर इज सम इशू। तो एट द एंड जो है मैं
ओके, कंक्लूड जो है, अगर इसका कंक्लूजन किया जाए तो एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ, ठीक है। वी हैव टू मेक श्योर कि हम दोनों मेंटली फिट होंगे तो बेहतरीन तरीके से सोच पाएंगे, महसूस कर पाएंगे, बेहतरीन डिसीजंस ले पाएंगे और बेहतरीन तरीके से सिचुएशंस को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। और समटाइम्स जो है ऐसा हो जाता है लाइफ में, जब नेगेटिव इवेंट्स अकर हो जाते हैं जिनकी वजह से हमें पुअर मेंटल हेल्थ को फेस करना पड़ता है, ठीक है। और हमें ये फील मैं कुछ नहीं कर सकता, लाइक वर्थलेस फील करना शुरू हो जाते हैं। तो लेकिन जो है उन तमाम चीज़ों के साथ कोप अप कैसे करना है, वी हैव टू डिसाइड, ठीक है, हाउ टू कोप अप विद, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है, अगर हमारी मेंटल हेल्थ हमारी फिजिकल हेल्थ को क्योंकि जो हमारी मेंटल हेल्थ है वही हमारी फिजिकल हेल्थ को अच्छा भी करती है और एक अच्छी जो है फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करती है और हमारी जो हेल्दी मेंटली और फिजिकल बिहेवियर्स को इन्हांस करती है, हमारी हेल्दी मेंटल हेल्थ, राइट। और सो वी कांट टेक our mental health for granted. Thank you so much. This was all about today. Now, if you have some question, you people may ask. Mental and physical health, and our respected speaker, Ma'am Ijaz, has explained it very well. Hope you all have understood. If you guys have any question regarding this topic, you may ask by turning on your mic or you can comment as well. Guys, if you have any question, you can ask. Okay, so we have question from Fatma Ahmad that why people take medicine instead of counseling. Ma'am, please answer. Okay, Nimra, question repeat कीजिए please. Repeat the question. Why people take medicine instead of counseling? किन का क्वेश्चन है ये? फातिमा का? जी जी, फातिमा अहमद का क्वेश्चन है ये। ओके फातिमा, देखें बच्चे, मैंने जब शुरू में ये चीज़ मेंशन की थी कि हम ज़्यादा जो है, हम लोगों की एक मेंटालिटी डेवलप हो चुकी है कि मेडिसिन्स हमें जल्दी क्योर कर देती हैं किसी भी सिचुएशन में। हमारी जो मेडिसिन्स हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं। और साथ में मैंने ये चीज़ भी मेंशन की कि अगर आप देखें किसी भी कोई भी ऐसी मेडिसिन आप जो भी ले रहे हो, तो अगर उस पर देखो तो एक लिटिल अमाउंट में वहाँ पे उस फार्मूले में ड्रग्स इंक्लूड होती हैं, ठीक है, लिटिल अमाउंट में, ताकि वो आप जो है ना उस चीज़ से, उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल आओ। तो मेडिसिन्स यही काम करती हैं और जब आप उन चीज़ों को, उन मेडिसिन्स को छोड़ देते हो तो दोबारा से आपकी वैसी सिचुएशन हो जाती है। आज का जो टॉपिक है वो यही इसी चीज़ से रिलेटेड है। हालांकि साथ में ये चीज़ भी है कि आपके जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं वो ज़्यादातर जो है अगर उनको ट्रीट करना हो तो ज़्यादातर साइकोथेरेपीज़ इफेक्टिव होती हैं या फिर ऑर्गेनिक मेडिसिन्स मीन जिनमें कोई इस तरह फार्मूले में इस तरह की चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती। तो ये लोगों का बिहेवियर है, लोगों की मेंटालिटी है कि वो ये चीज़ सोचते हैं कि हमें बजाय काउंसलिंग, बिकॉज जो आपकी काउंसलिंग है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्ट होती है, लेकिन वो आहिस्ता 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 करके अपना असर दिखाती है, ठीक है, आपको मोटिवेट करती है, आपको काउंसलिंग में आपको डिफरेंट टेक्निक्स भी बताई जाती हैं। तो ये जो चीज़ है लोग फिर जो है ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं कि कम टाइम में हमें जल्दी सोल्यूशन मिल जाए, और हालांकि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता, बिकॉज आप जब उन मेडिसिन को छोड़ते हो तो दोबारा से आपकी वैसी सिचुएशन होना शुरू हो जाती है। मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रही हूँ, अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए आप मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफर करते हो तो, और जो है मेंटल हेल्थ को ठीक करने
के लिए, मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए आपका जो है आपकी थेरेपीज़, आपकी मेडिकेशन दोनों साइड बाय साइड चलती हैं, ठीक है। मेडिकेशन आपको हेल्प करती है कि आपको एक नॉर्मल रूटीन की तरफ लाया जाए, जबकि साइकोथेरेपीज़ आपको इस तरीके की हेल्प करती हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। आपको नॉर्मल लाइफ रूटीन में लाने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए वो मिलते हैं। आई होप यू गॉट योर आंसर। Thank you so much, ma'am. Hira Masood is having a question that if a person don't take stress but always stay restless, why? Don't take stress but always stay Always stay restless. restless, why? एज आई टोल्ड यू के हर इंसान की सिचुएशन, हर इंसान की कंडीशन डिफ़र करती हैं किसी दूसरे इंसान से। सो हम इस चीज़ को जज नहीं कर सकते कि आपको अगर स्ट्रेस है तो मतलब आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो लेकिन आप रेस्टलेस रहते हो, तो उन चीज़ों के पीछे ऐसी कौन सी रीज़न्स हैं, ठीक है। इस रेस्टलेस रहने के पीछे ऐसी कौन सी रीज़न है जो आपको पिंच कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये इसका जवाब जो है आपको तभी मिलेगा जब आप इस अपने मसले को प्रॉपर तरीके से डिस्कस करोगे, ठीक है। इसका आंसर इस तरीके से नहीं दिया जा सकता क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस आ जाती हैं, डिफरेंट सिचुएशंस आ जाती हैं जिनकी वजह से इंसान रेस्टलेस रह सकता है, और ये अब उस इंसान की लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी लाइफ में ऐसे कौन से इवेंट्स या कौन से ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनकी वजह से वो रेस्टलेस है। मैम हमारे पास एक और क्वेश्चन है नूर जफर की तरफ से कि वीकनेस या अंडरवेट होने से भी डिप्रेशन होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। वीकनेस और अंडरवेट जो है आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जाती है। अगर आप ओबेसिटी में, आई थिंक मैंने इस चीज़ पे एक्सप्लेन किया है कि अगर आप या तो बहुत ज़्यादा हैवी, आपका बहुत ज़्यादा वेट है तो ऑब्वियसली यू विल हैव डिप्रेशन, ठीक है। और अगर आपका वेट बहुत कम है तो आपको उस टाइम भी डिप्रेशन फील होता है। वो इस वजह से फील होता है क्योंकि क्योंकि आसपास की लोगों की जो बातें होती हैं ना, अगर देखा जाए तो हम सब ही उन चीज़ों को अफेक्ट कर रहे होते हैं, हम पे अफेक्ट कर रही होती हैं वो बातें। बेशक हम जितना मर्जी उस चीज़ को कह लें कि नहीं मुझ पे लोगों की बातों का असर नहीं होता, तो कहीं ना कहीं हमें वो बातें, कहीं ना कहीं हमें परेशानी रहती है कि मैं अच्छा नहीं दिख रही हूँ या फिर मेरी लुक अच्छी नहीं है। तो ये चीज़ जो है लो वेट वालों को भी बॉदर करती है। Okay, ma'am. So we have another question by Kulsum that is migraine curable by counseling without any medicine? ब्रेन क्योरेबल बिल्कुल है, और मेडिसन्स जो है मैंने पहले बताया, मेडिसन्स आपकी मेडिकेशन, आपकी साइकोथेरेपीज दोनों साइड बाय साइड वर्क करती हैं। मेडिसन्स अफेक्ट करती हैं आपकी लाइफ को नॉर्मल लाइफ रूटीन की तरफ लाने के लिए, ठीक है। साइकोथेरेपीज़ आपको साइकोथेरेपीज़ काउंसलिंग जो है वो थेरेपीज़ में ही आ जाता है। तो आपकी जो काउंसलिंग है या फिर आपकी जो टेक्निक्स हैं आपको बताई जाती हैं वो आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने के लिए जो है वो की जाती हैं आपके साथ, ठीक है। तो मेडिकेशन जो है कुछ हद तक चलती है साथ में, लेकिन देयर आर सम नेचुरल वेज जिनके थ्रू आप अपने माइग्रेन को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकते हो। और इट्स अ स्टडी कि माइग्रेन जो है वो कभी भी केमिकल फार्मूलाज की जो मेडिसिन होती हैं उनके साथ ट्रीटेबल नहीं है। ऑर्गेनिक मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो इट कैन बी ट्रीटेबल। Thank you so much, ma'am. Fatma Ahmed is asking that why people not happy even we have everything in our life. We talk, we laugh, we talk, spend time with friends, family. Still we feel lonely. Why? ओके, यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन है वो मुझे दो चीज़ों की तरफ लेकर जा रहा है। फर्स्ट ये कि फातिमा की तरफ से क्वेश्चन है निम्रा? Yes, ma'am. Fatma Ahmed. ओके फातिमा, फर्स्ट ये कि आपने उस चीज़ को देखना है, ठीक है, जो आपके अंदर एम्प्टीनेस क्रिएट कर रहा है कि ऐसा क्या है कि फ्रेंड्स, फैमिलीज, ज़िंदगी की हर फैसिलिटी, एक लग्जरियस लाइफ के होते हुए भी आप अंदर से खाली हो। तो वो रीजंस जो है इसी चीज़ की तो आज हमें ज़रूरत है, ठीक है। एक यही चीज़, ये बहुत एक कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये किसी एक इंसान में नहीं है। अगर आप किसी दूसरे के पास भी जाकर बैठो ना तो वो बहुत हंसते चेहरों के पीछे भी आपको बहुत खालीपन मिलेगा। तो उस चीज़ को आपने ढूंढना है, उस रीज़न को देखना है कि कौन सी ऐसी रीज़न है कि सब कुछ होते हुए भी आप एम्पटी हो, ठीक है। और सबसे बड़ी रीज़न अल्लाह ताला से दूरी भी हो सकती है, और भी बहुत सारी रीज़न्स हैं
जो हमारी लाइफ के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये हमारे ऊपर है। मैंने जैसे उसके फैक्टर्स में बताया कि जितना आप अपने आप को जानते हो उतना कोई आपका थेरेपिस्ट, कोई साइकोलॉजिस्ट, कोई डॉक्टर आपको नहीं जान पाता, बिकॉज आपको ज़्यादा पता होता है कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे हिट कर रही है, राइट। तो ये देन जो है, अगर आप वो चीज़ ढूंढ लेते हो और ये वो रीज़न जो है आपको मिलता है अपने ऊपर रिसर्च करने से। हम लोगों का आजकल ज़्यादातर फोकस होता है दूसरों के ऊपर रिसर्च करने के, तो बजाय उस चीज़ पे जाने के खुद के ऊपर रिसर्च करके अगर इंसान खुद को जान लेना, तो उसको पता चल जाता है कि कहाँ पे उसकी वीकनेसेस लाई करती हैं, कहाँ पे उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लाई करते हैं, और कौन सी चीज़ उसको ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और कौन सी चीज़ उसको बॉदर कर रही है, जो सब कुछ होते हुए भी उसमें एम्पटीनेस क्रिएट कर रही है। तो जब आप उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हो, उस चीज़ का जब आपको पता चल जाता है, तो देन कोपिंग स्किल्स, देन उसके बाद जो सॉल्यूशंस हैं वो खुद ब खुद सामने आना शुरू हो जाते हैं। जी निम्रा। Thank you so much, ma'am. Here's a question from Sania Sarwar, that how can we change the mind of people who thinks that those people who visit psychologists are mad? सानिया, वी कांट चेंज द माइंड्स ऑफ पीपल। हम लोगों की मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते। हमेशा ये बात याद रखिए कि दूसरों को चेंज करने की बजाय खुद को चेंज कीजिए, ताकि आपके उस चेंज की वजह से लोग आपसे इन्फ्लुएंस होना शुरू कर दें। जब आप हमेशा माइंड में ये रखोगे कि मुझे लोगों की मेंटालिटी को चेंज करना है, ठीक है, जब लोगों की मेंटालिटी चेंज होगी तब मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी या तब मैं किसी थेरेपिस्ट के पास जाऊंगी, तो वो वक्त कभी नहीं आने वाला। आप अगर आपकी वजह से अगर आप अगर एक की चेंज करने की कोशिश करोगे ना, तो वहाँ पे पीछे 6-7 और उस मेंटालिटी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा नहीं है कि आप अपनी मेंटालिटी को, आप अपने वे ऑफ थिंकिंग को जो है चेंज करो, ताकि उस चेंज से दूसरे लोग इन्फ्लुएंस हो जाएं। क्योंकि जो बेटर रिजल्ट्स होते हैं ना, जब आप एक बात याद रखिएगा कि जब आप एक किसी काम का स्टार्ट करने जाते हो, तो 2 आपके साथ होते हैं, पीछे 10 होते हैं जो आपके खिलाफ होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो लोग उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये चीज़ अपने अंदर पैदा कीजिए कि आपको किसी को चेंज नहीं करना, आपको खुद को चेंज करना है जो आपके लिए बेटर हो। जी निम्रा। Ma'am, Farah Rashid is asking that we are going for medicine too quickly in any type of disease. So why we feel hesitation for a therapeutic or psychological session? ओके, फरा, राइट। इसमें यही है कि लाइक हमारी अवेयरनेस होने के बावजूद भी हमारे ये एक प्रोहिबिटेड बिहेवियर है कि जिस पे हम नहीं फोकस करते, ठीक है। आज का जो भी सेशन जो कुछ भी था वो यही था, बिकॉज हम लोग ये समझते हैं कि हमारी जो माइंड है और जो बॉडी है वो दोनों अलग अलग से काम करते हैं, ठीक है। माइंड हमारा किसी और वे में काम करता है, बॉडी किसी और वे में काम करती है, तो वो दोनों चीज़ें ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो लोगों में ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है, राइट। उनका ऐसा बिहेवियर क्यों है, बिकॉज उनमें उतनी अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, अवेयरनेस की कमी है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है और ये बिहेवियर भी अब जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, जैसे जैसे मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ रही है, और इंशाल्लाह जो है हम भी एक दिन ऐसी सोसाइटी में लाई करेंगे जहाँ पे मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलेगी और लोग साइकोलॉजिकल सेशंस और इन चीज़ों को लाइक वो इस तरह हवा नहीं समझेंगे। जी निम्रा। Okay, ma'am, thank you so much. Here's another question from Sania, that is there any stage of depression where one cannot be treated? I mean, up to which level one's type of depression cannot be treated? Can be किन का क्वेश्चन है ये? Sania Sarwar. सानिया सरवर का क्वेश्चन, ओके। ट्रीटेड जो है डिप्रेशन क्योरेबल है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि डिप्रेशन जो है क्योरेबल नहीं है, लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। सबसे पहली बात यही आती है कि आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हद तक विलिंग हो अपनी किसी भी इशू, मेंटल इशू, चाहे वो इशू मेंटल इशू हो या फिर आपका जो है कोई फिजिकल इशू हो, ठीक है। तो ये आपकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस ट्रीटमेंट प्लान जो होता है वो किस तरीके तक लेकर चलते हो। फॉर एग्जाम्पल के पास जाते हो फॉर योर एक्नी प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर लड़कियाँ मौजूद हैं तो ये ज़्यादा सूटेबल रहेगी
कि आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो एक्नी प्रॉब्लम के लिए, स्किन स्पेशलिस्ट आपको असाइन करता है कि इतने मंथ्स का ट्रीटमेंट है, ठीक है, 3 मंथ्स हो गए, 4 मंथ्स हो गए, 5 मंथ्स हो गए या 1 ईयर हो गया, तो इतने मंथ्स का आपका ट्रीटमेंट, क्योंकि वो जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है आपकी एक्नी के ऊपर, ठीक है, आपके प्रॉब्लम के ऊपर, जितना आपका प्रॉब्लम है उतना ही ट्रीटमेंट जो है वो प्रोलॉन्ग होगा। तो सिमिलरली डिप्रेशन, किस हद तक आप डिप्रेस्ड हो, राइट, तो वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर किसी के पास भी जाते हो, तो वो देन आपको सजेस्ट करेगा कि आपका ट्रीटमेंट प्लान आपने कब तक फॉलो करना है, कब तक क्योरेबल है। और ये बात जो है ठीक है, जो डिप्रेशन है वो क्योरेबल है, ट्रीटेबल है, ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन क्योर नहीं किया जा सकता। जी निम्रा, नेक्स्ट। मैम फातिमा की तरफ से क्वेश्चन है कि समटाइम्स यू फील डिप्रेस्ड विदाउट एनी रीजन व्हाई। समटाइम यू फील डिप्रेस विदाउट एनी रीज़न। जी फातिमा, जो है वो हमें लग रहा होता है कि वो कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, आप डिप्रेशन फील कर रहे होते हो तो वो जस्ट हमें लग रहा होता है, बिकॉज जो है ना, हम लोग डीप इनसाइड जाकर नहीं देखते कि इधर देयर इज़ द रीज़न और नॉट। तो रीज़न, हर चीज़ के पीछे रीज़न ज़रूर होती है, ठीक है, ये बात जो है वो बिल्कुल ठीक है कि देयर इज़ द रीज़न बिहाइंड एवरी सिचुएशन, ठीक है, तो आप अगर कुछ भी फील कर रहे हो तो देयर इज़ द रीज़न, वहाँ पे रीज़न का एग्जिस्ट होना लाजमी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे रीज़न नहीं होती, तो आपने उस रीज़न को देखना होता है। ये हमें लग रहा होता है कि कोई रीज़न भी नहीं है फिर भी मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो ऐसा नहीं होता। जी निम्रा। मैम नूर जफर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाई पीपल प्रेफर साइकियाट्रिस्ट ओवर साइकोलॉजिस्ट। साइकेट्रिस्ट, वही बात मैंने इस क्वेश्चन का पहले जवाब दिया है। साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन रेफर कर देते हैं, मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं, साइकोलॉजिस्ट आपको आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलते हैं, और जो है साइकोलॉजिस्ट का ये होता है कि आप थेरेपीज़ और साइकोथेरेपीज़ के थ्रू जो है वो अपनी हेल्थ को बेटर बनाओ। और साइकेट्रिस्ट के पास वही लोग जाते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है, जो हमेशा बहुत उसमें रहते हैं कि हमें जल्दी से इलाज चाहिए, जल्दी से हम लोग ठीक हो जाएं, जल्दी से हम लोग बस नॉर्मल लाइफ की तरफ आ जाएं, तो इसलिए आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देते हैं। और साथ में ये बात भी आती है कि जो साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको साइकोथेरेपीज प्रोवाइड नहीं कर सकता, बिकॉज साइकेट्रिस्ट इज़ द मेडिकल डॉक्टर जो कि सिर्फ आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, और साइकोलॉजिस्ट आपको जो है काउंसलिंग और साइकोथेरेपीज प्रोवाइड करता है। जी निम्रा। अदीला महराज पूछ रही है मैम, कैन वी रिलेट ओवरथिंकिंग विद डिप्रेशन? यस, डिप्रेशन जो है ओवर थिंकिंग के साथ हम रिलेट कर सकते हैं, बल्कि रिलेटेड किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी जी जी, कौन? मेरा क्वेश्चन है, हाउ कैन थिंकिंग कैसे reduce? ओवर थिंकिंग को कैसे रिड्यूस किए जा सकता है? मैंने अभी कुछ फैक्टर्स बताए फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हो। उन्हीं फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स हैं एक्सरसाइज, आपकी टॉक, आप का जो है हाउ टू मेंटेन योर स्ट्रेस लेवल, बिकॉज आपकी ओवर थिंकिंग स्ट्रेस लेवल को भी आप इंक्रीज करती है, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग को रिड्यूस करने के लिए हर इंसान की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। अगर इफ़ आई शेयर माई एक्सपीरियंस, तो अगर मुझे किसी चीज़ की ओवर थिंकिंग मैं करना शुरू लिखती हूँ, जो चीज़ें मुझे जिन चीज़ों की वजह से मुझे ओवर थिंकिंग का इशू हो रहा हो, तो उन चीज़ों को लिख कर देन मैं उन चीज़ों को सॉल्व करती हूँ। तो आई थिंक इट्स द बेटर वे कि आप जो है उस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में लिखना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक बात आपके दिमाग में रहती है ना, जब तक बात आपकी जो चीज़ आपके माइंड में रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको हिट करती रहती है, कहीं ना कहीं आपको पिंच करती रहती है। तो दैट्स बेटर कि आप उस ओवर थिंकिंग को निकाल के अपने सामने रख दो,
ठीक है, इस चीज़ के बारे में मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। देन उस चीज़ के बारे में ओवर थिंक करने की बजाय देन ये सोचें कि अब उस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो इट में रिड्यूस, ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव है ये वे कि जब आप राइट डाउन करते हो आर्टिकल, लाइक एक आर्टिकल की शक्ल में, एक जर्नल की शक्ल में आप लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो इसीलिए कहते हैं कि डायरी जो है इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ अ ह्यूमन। हाँ जी निम्रा। Yes, ma'am. स्ट्रेस लेवल को कैसे रिड्यूस किया जाए? स्ट्रेस लेवल को एक्सरसाइज वर्कआउट्स के थ्रू जो है, इफ़ यू नो अबाउट स्विमिंग, तो आप स्विमिंग के थ्रू भी स्ट्रेस लेवल रिड्यूस कर सकते हो। और सिमिलरली आप जब एक्सरसाइज करते हो तो रनिंग के थ्रू आपका स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो सकता है। और सेम लाइक मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जब आप एक चीज़ को लिखना शुरू कर दो, अपनी हैबिट बनाओ, अपनी एक हैबिट बनाओ कि लिखें, अपने प्रॉब्लम्स को लिखें, ठीक है। लिख के देन उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचने की बजाय उनके उनके सोल्यूशन के बारे में सोचें, ठीक है। तो जब आप ये चीज़ें करने शुरू हो जाते हो, इन कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने अपनी लाइफ में शामिल करनी होती हैं, तो ये फिर आपकी प्रॉब्लम को खुद सोल्यूशन आपका निकल आता है। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। Me, Fatma Ahmed. जी जी। So, ma'am, I have a question. हम्म, What हम्म। is spirituality? I mean, spirituality का psychology से क्या connection है? Like someone said कि depression है, anxiety है, आपको back magic है, like that type of thing. हम्म, हम्म। इसको हम कैसे खत्म करें, या ये रियल में exist करता है या नहीं करता? ओके। मेरा ये question ओके 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 फातिमा, आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर जो है उसका बेस्ट जो आंसर है वो स्पिरिचुअलिस्ट ज़्यादा दे सकते हैं। इधर आई डोंट नो इनफ अबाउट स्पिरिचुअलिटी, लेकिन जितना मैं जानती हूँ उसमें ये है कि सेल्फ हिप्नोसिस और कुछ इस तरह की चीज़ें जिनके थ्रू आप उन इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और उसमें लाइक साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी कैसे रिलेट करते हैं? साइकोलॉजी जिस तरीके से है इज़ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर, ठीक है। उसमें जो स्पिरिचुअलिटी होती है उसमें स्पिरिचुअलिस्ट डिफरेंट प्रैक्टिसेस करते हैं, डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके थ्रू वो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू गॉट अ क्वेश्चन आंसर। जी फातिमा। और निम्रा सर। आई थिंक सबके क्वेश्चंस हो गए हैं, और अगर किसी ने पूछना है तो वो अभी पूछ सकता है। आई थिंक टाइम अब अप हो गया है, वी शुड। यस मैम। सो आज के लिए तो सबके क्वेश्चंस हो गए हैं। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वेबिनार एंड गेन सम एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। In the next webinars, we will be coming with different topics, and that will be definitely very informative for you. Soon we will update you on social media, and for that you have to follow us on all the social accounts. Inshallah, soon we will meet again and with the new interesting topic in next webinar. Till then, take care of yourself. Allah. ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल। अल्लाह Thank हाफिज़। you, ma'am. अल्लाह हाफिज़। thank you.